چیف جسٹس آئی جی اسلام آباد اور ایف آئی اے پر شدید برہم. صحافیوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. اٹارنی جنرل صاحب یہ کس قسم کے آئی جی ہیں؟ ان کو ہٹا دینا چاہیے. 4 سال ہو گئے اور آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کسی کو گولی مار دو، تشدد کرو اور کسی کو اٹھا لو، پھر سیف سٹی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں. چیف جسٹس نے ایف آئی اے افسر سے سوال کیا، کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی؟ آپ ہمارا کندھا استعمال کر کے کام اپنا نکال رہے ہیں، کیوں نہ ایف آئی اے کو توہین عدالت کا نوٹس دیں؟ چیف جسٹس آئی جی اسلام آباد اور ایف آئی اے پر شدید برہم دکھائی دیے. چاہتی ہوں پنجاب میں کوئی بے گھر نہ ہو، ہر شہری کا اپنا گھر ہو، اپنی چھت ہو. مریم نواز کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اجلاس میں گفتگو. کہا عوام کے لیے سستے گھروں کی فراہمی ہمارے منشور کا حصہ ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ نے کم آمدن والے لوگوں کے لیے اسکیم سے متعلق امور سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گھر کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم. مریم نواز کی کم آمدن والے لوگوں کے لیے گھر کی قسط ممکنہ حد تک کم کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چاہتی ہوں کہ پنجاب میں کوئی بے گھر نہ ہو، ہر شہری کے پاس اپنی چھت ہو. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں پرائسز نیچے جاتی ہیں، ہمارے ملک میں اوپر جاتی ہیں. تو ہم کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، ہولڈرز کے اوپر بھی کر رہے ہیں، اور پرائس کنٹرول کا انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی میکنزم نہیں ہے. تو ابھی جو ہے اس سے ہمیں گزارا کرنا پڑے گا، نیا ڈپارٹمنٹ ریز کرنا پڑے گا تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے. تو بہت سیریس گورننس کے فلاز ہیں جو ہمیں پورا کرتے ٹائم لگ جائے گا، لیکن اس کے اوپر میں نے سی ایس کو کہا ہے کہ وہ روز میٹنگ کرے تمام ڈسٹرکٹس کے ساتھ. ریٹ لسٹ کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. بس ہم یہ لوگ اب کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، جرمانے بھی کر رہے ہیں، گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ 12.5 کروڑ عوام جو ہے پنجاب کے صوبے کی، ان کو جو بیسک ان کا حق ہے، جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملے، ان کو کھانا ملے، ان کو تعلیم ملے، ان کو صحت ملے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. مقدمے میں شیر افضل مروت، ملک شفقت اوان، علی بخاری، شعیب شاہین نامزد. عامر مغل، شوکت بصرہ، ایاز امیر، خالد خورشید اور سمابیہ طاہر بھی نامزد ہیں. مقدمے قاری سرکار میں مداخلت دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. 9 فروری کو ملک میں دھاندلی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا. رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی نیوز کانفرنس. کہا حکومت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے. کل ہمارے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. آئی جی پنجاب نون لیگ کے گھریلو ملازم بنے ہوئے ہیں. 9 فروری کو ملک میں دھاندلی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا. جو سہولت پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے. ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں. ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں. پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. مولانا عبدالقدیر آزاد مرکزی اجلاس کی صدارت کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے شہروں میں ہوں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. مولانا عبدالقدیر آزاد مرکزی اجلاس کی صدارت کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے شہروں میں ہوں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق کہ آج چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں. وزیراعظم شہباز شریف سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدو کی ملاقات ہوئی. پاک فضائیہ کے سربراہ کی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد. ملاقات میں پاک فضائیہ کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدو کی.
खबर है पेशावर से, जहां पर बोर्ड बाजार में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाके से 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। एहतशाम खान हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा फुटेज में क्या देखा जा सकता है, किस तरह से मदद मिली है सिक्योरिटी इदारों को इससे? बिल्कुल, देखें जो तहकीकाती टीमें उनको गुज़श्ता रोज जो पेशावर में नासिर बाग रोड पर बोर्ड के करीब जो धमाका हुआ था, उस धमाके के हवाले से मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात की गई हैं। जो इनिशियली ये सीसीटीवी फुटेज है सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो 3 जो दहशतगर्द थे वो मोटरसाइकिल के जरिए बारूद नासिर बाग से पेशावर शहर की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम जैसे ही वो इस किनार रोड पे पहुंचे तो इस दौरान ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद आग लगने के मनाजर भी सामने आए हैं। इसके अलावा तीनों जो दहशतगर्द है उनके जो मोबाइल फोन है और दीगर जो सामान है उसके हवाले से भी तहकीकाती टीमों को काफी अहम मालूमात मिली हैं। ये जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा गया है कि जो बारूद था वो दहशतगर्दों के पास नहीं था, बल्कि जो मोटरसाइकिल था उस मोटरसाइकिल के अंदर ये बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। और जैसे ही ये अपने टारगेट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो टारगेट से पहले ही रास्ते में ही ये धमाका हुआ है। फुटेज के बाद जो दहशतगर्द जिस रास्ते से आए थे, इस रास्ते से मुख्तलिफ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां से भी ये शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तीनों दहशतगर्दों के बारे में मालूमात ली गई हैं। एक के बारे में बताया गया है कि उसका ताल्लुक जो हलाक हुआ था दहशतगर्द, उसका ताल्लुक कबायली इलाके से है, जबकि एक दहशतगर्द जो कि जख्मी हालत में गुज़श्ता रोज पेशावर से ही नासिर बाग रोड से ही गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक पेशावर से है। मजमूई तौर पर इस दहशतगर्दी के वाक़े में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ था। 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। बहुत शुक्रिया एहतशाम खान इस बारे में अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। सियासत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मरियम नवाज की सिविल सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा। कल एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस वैन पर हमला करके लोगों को छुड़ाया। ऐसा कौन से मुल्क में होता है? अगर आप ये समझते हैं कि अपना जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के। अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम। कल 2 ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, एक सेकेंड, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब में शैडो काबीना बनाने का फैसला। आइंदा 48 घंटे में पंजाब में शैडो काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल ने पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली के साथ मुशावरत शुरू कर दी। मियां असलम इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ एक महकमे पर नजर रखेगी। पंजाब में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं। पब्लिक रिलीफ के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी जीरो है। तहरीक इंसाफ का पंजाब में शैडो काबीना बनाने का फैसला। हुकूमत पंजाब का कलीलुल मुद्दती बजट की असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा ख़जाना को कलीलुल मुद्दती बजट अखराजात की तैयारी करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता असम्बली इजलास में 31 मार्च तक 1 माह के बजट अखराजात की मंजूरी ली थी। बजट की तैयारी मुकम्मल करने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। ज़राए का ये बताना है हुकूमत पंजाब का कलीलुल मुद्दती बजट की असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा ख़जाना को कलीलुल मुद्दती बजट अखराजात की तैयारी करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा एनर्जी एंड पावर का इजलास हुआ। मसाजिद और इबादत गाहों की सोलराइजेशन के मंसूबे में मदारिस भी शामिल करने का
फैसला सामने आया है। मसाजिद और इबादत गाहों की सोलराइजेशन के मंसूबे में मदारस भी शामिल करने का ये फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत महकमा एनर्जी एंड पावर का इजलास हुआ है। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का सैलाब आ गया। सब्जी की कीमतों ने बड़ी छलांग लगा ली। प्याज, भिंडी और करेले की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 200 रुपए और आलू 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। किचन चलाना मुश्किल हो गया। केला 300 रुपए दर्जन और सेब 400, अंगूर 700 रुपए की हद को छू गए। माह मुकद्दस की आमद। मुनाफा खौर नेकियां समेटने की बजाय माल कमाने मैदान में आ गए। शहर शहर खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चेक एंड बैलेंस न होने के बाइस ताजिरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट भी हवा में उड़ा दी। रमजान की आमद के साथ ही कराची में गरा फरोशी और नाजायज मुनाफा खौरी का सैलाब उमड़ आया। सब्जियां, फल, गोश्त, मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 70, प्याज 240 रुपए किलो बेचा जा रहा है, जिस पर शहरी बिलबिला उठे हैं। रमजान आ रहा है, नेमत का महीना आ रहा है, इनको चाहिए कि चीज़ें सस्ती करें। ये लोग डबल मुनाफे पे बेचते हैं, इसलिए उनको पता है ये चीज़ें सेल होनी है। गरीब आदमी परेशान है। एक चीज़ लेनी होती है 2 दफ़ा बंदा नहीं 100 दफ़ा सोचता है। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। प्याज, भिंडी, करेला की ट्रिपल सेंचुरी, जबकि लहसुन, अदरक 400 से 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। कोयटा की बात करें तो वहां भी सरकारी निर्खनामा दफ्तरी खातों तक ही महदूद है। फल, सब्जियों और गोश्त समेत तमाम खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। खजूर 700 रुपए किलो तक जा पहुंची है। मौजूदा हुकूमत जो अभी आई है, जो हम पे मुसल्लत की गई है, इसकी वजह से हमें कोई रिलीफ का कोई उम्मीद नहीं है। पेशावर में भी महंगाई का तूफान अवाम की सारी खुशियां उड़ा ले गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज जारी है, मगर आटा और चीनी वहां भी नायाब हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। फवाद चौधरी को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद की अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया फवाद चौधरी के खिलाफ इंक्वायरी अभी जारी है। इस दौरान फवाद चौधरी ने इस्तदा की कि खानदान और बेटियों से फोन पर बात की इजाजत दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 26 मार्च तक तौसी कर दी। कोयटा में तेज बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हुए हैं। मौसमियात वालों का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रह सकता है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी है। अंदरूनी शहर में जगह जगह पानी खड़ा है। पशीन, किला अब्दुल्ला, दालबंदीन समेत दीगर अजला में बादल बरसने के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कुचलाक में LPG का टैंकर भी बारिशों के बायस फिसलन की वजह से उलट गया। बारिशों के बाद गैस और बिजली की आंख मचोली भी जारी है। अभी देखो बारिश की वजह से ये पानी है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। भाई ये रोड जो है ना, एयरपोर्ट रोड है, सारा पानी से भरा हुआ है। जिले हुकूमत ने कोयटा में हालिया बारिशों के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। गवादर, दालबंदीन और दीगर इलाकों में जिली हुकाम को अलर्ट रहने का कहा गया है। PDMA समेत इमदादी अदारों को बारिशों के बाद पेश सूरत-ए-हाल पर नजर रखने की हदायत की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है बारिशों का ये सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रह सकता है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा।